के राजविंदर सिंह वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 1 ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਹਰਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਭਾਵ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਜਮਾ ਘਟਾਓ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਭਾਗ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ, ਅਗੇਤਰ, ਪਿਛੇਤਰ ਆਦਿ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਮਾ ਦੇ ਜੋੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਪੈਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਤੇ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਸੋ ਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੌਲਿਕ ਸੰਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਭਾਗ ਨੇ ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਜੋੜ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਮਾ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 566 ਜਮਾ 98। 566 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 98 ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ। 6 ਤੇ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 14 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 1 ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਤੇ 1 7, 7 ਤੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 16 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 16 ਦਾ 6 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਫਿਰ 1 ਹਾਸਲ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। 5 ਤੇ 1 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ 566 ਜਮਾ 98 ਦਾ 664 ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 3486 ਜਮਾ 4306। 3486 ਜਮਾ 4306। ਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਅੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗੇ। 6 ਤੇ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 12। ਤੋ 12 ਦਾ 2 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 1 ਹਾਸਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੋ 8 ਤੇ 1 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8, 1 9, 9 ਤੇ 0 9। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਤੇ 3 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ 7 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ 4 ਤੇ 3 7 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੋ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਤਰ ਹੈ ਉਹ 7792 ਹੈ ਜਾਂ 7792 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਰਕਮ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 112 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 2709। 112 ਜਮਾ 2709 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸੰਖਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ 0 ਲਗਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, 9 ਤੇ 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 11, ਤਾਂ ਇਹਦਾ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 1 ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹਾਸਲ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 1 1 2, 2 ਤੇ 0 2 ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। 7 ਤੇ 1 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ 8 ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ 2 ਤੇ 0 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 2 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 2821। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨੋਂ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨੋਟ ਕਰ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬਕਸਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਪਾਰਟ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵੀ 3 ਪਾਰਟ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ 305 ਜਮਾ 299, ਦੂਸਰਾ 2186 ਜਮਾ 476, ਤੀਸਰਾ 332 ਜਮਾ 4097 ਜਮਾ 81। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉੱਤਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੀ ਬਕਸੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
तो सब तो पहला साडे कोल है 305 जमा 299, ठीक है। तो 305 नूं असी 299 दे विच जोड़ के देखते हाँ कि की बनता है। तो 5 ते 9 बच्चों किन्ने हुंदे ने? 9 5 14, वेरी गुड। तो एक हासिल आएगा। 8 ते 1 साडे कोले 9 हो जाएंगे, शाबाश। तो 3 ते 2 साडे कोले 5 हो जाते हैं, ठीक है जी। तो ये नाल साडे कोल जिहड़ा पहला सवाल है इहदा उत्तर की बन जाता है 594। ये जिहड़ा उत्तर है ये असीं इत्थे खाली बॉक्स दे विच लिख देंगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो ये साडे कोल पहले सवाल का उत्तर बन जाता है। इस तो बाद दूजे सवाल का दूजा पार्ट साडे कोल है 2186 जमा 476, ठीक है। 2186 दे विच 476 आपां जोड़ने ने। तो ये भी आप एवं लिख लांगे इत्थे 2186 जमा 476, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहला 6 6 साढ़े कोल 12 होंगे ने, तो एक हासिल आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएंगे। 8 ते 1 9, 9 ते 6 16, तो इतने 6 आ जाएगा साढ़े कोल, तो एक हासिल आ जाएगा। 1 1 2, 2 ते 4 6 आ जाएंगे, और ये 2 साढ़े कोल हेठा इवें आ जाएगा, ठीक है। तो साढ़े कोल दूजे सवाल का जिहड़ा उत्तर है वो की बन जाता है 2662, 2662। इनू असीं इस खाली बॉक्स दे विच लिख देंगे, ठीक है। तो तीजा सवाल साढ़े कोल जिहड़ा हुण है वो है 332 जमा 4097 जमा 81। ये 3 संख्यावां दा असीं जोड़ करना है। एक साढ़े कोल 2 अंकां वाली संख्या है, एक साढ़े कोल 4 अंकां वाली संख्या है, तो एक साढ़े कोल 3 अंकां वाली संख्या है। तो सब तो पहला आपां 4 अंकां वाली संख्या जिहड़ी इत्थे लिख लैंदे आ 4097। इस तो बाद 3 अंकां वाली संख्या आपां लिख लैंदे आ 332। इस तो बाद 2 अंकां वाली संख्या 81 लिख लैंदे आ, ठीक है विद्यार्थियों। तो हुण असीं इन्हां दा जोड़ करदे हां। 7 ते 2 जिहड़े 9, 9 ते 1 10, थे साडे कोल 10 दी 0 आ जाएगी, एक इधर हासिल ले लांगे आपां। 9 ते 1 10, 10 ते 3 साडे कोल 13, 13 ते 8 बन जांदे ने 21, 21 दा 1 कित्थे आएगा तो 2 हासिल आ जाणगे। 2 ते 0 2, 2 ते 3 5, ठीक है। तो इहदा जोड़ जिहड़ा साडे कोल है सैंकड़े वाले अंकां दा 5 बन जाएगा, ठीक। इस तो बाद 4 है, 4 दा 4 ही बचेगा। सो विद्यार्थियों तीजे सवाल दे विच तिनों जिहड़ियां साडे कोल संख्यावां दित्तियां होईयां सन, इन्हां दा जोड़ जिहड़ा साडे कोल 4510 बन जाता है, जो असीं इस बॉक्स दे विच लिख देंगे। 4510 भाव 4510, ठीक है। तो ये साडे कोल दूजे सवाल दे तिनों जिहड़े पार्ट सी वो आपां हल कर लए हन। खाली बक्सिਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ जोड़ करन ਤੋਂ उपरंत भर दिता है, ठीक है। तो मैनू उम्मीद है कि सवाल तुसी बहुत चंगी तरह समझ लए होणगे ते खुद भी कर लए होणगे नोट कॉपी ते नोट। इस तो बाद साडे कोल तीजा सवाल है वर्कशीट 2 दा मौलिक संक्रियावां बेसिक ऑपरेशंस, ठीक है। तो इहदे विच जिहड़ा सवाल है वो सब तो पहलां असीं देखदे हां तीजे सवाल दी रकम साडे कोल की है। प्रश्न 3, जगप्रीत ने एक दुकान तो 3 किलो चीनी ਅਤੇ 4 किलो चावल खरीदे। इस दे लई उसने क्रमवार 135 रुपए ਅਤੇ 216 रुपए खर्च किए। दसो जगप्रीत ने किन्ने रुपए की खरीददारी की। ठीक है विद्यार्थियों, जगप्रीत ने दुकान तो कुछ चीनी खरीदी है तो कुछ चौल खरीदे ने। तो उन्हों का क्रमवार जिहड़ा सानू प्राइस भी दिता होया कि चीनी दे लई कितना खर्चा किया गया है तो चौलों के लिए कितना खर्चा किया गया है। तो असी जगप्रीत ने दुकान वाले नू कुल किन्नी रकम जिहड़ी वो दी है, कुल किन्ने रुपए की खरीददारी की है, ये इस दे विच पता करना है। सब तो पहला आपां ये लिखांगे कि जगप्रीत ने दुकान तो 3 किलो चीनी जिहड़ी लई उस दे जिहड़े उसका कितना जिहड़ा मुल है उसनू देना पिया। ठीक है, इस तरह फिर चौलों का मुल देखांगे, फिर असी उहदा कुल जिहड़ा पता करांगे। सो आपां लिखांगे 3 किलो चीनी दा मुल, 3 किलो चीनी दा मुल। तो 3 किलो तो 3 किलो चीनी दा मुल साडे कोल है 135 रुपए।
ठीक है विद्यार्थियों। इस तो बाद 4 किलो चावल ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 216 रुपए। 4 किलो ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹਨ 216 रुपए। ठीक है विद्यार्थियों। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਜਗਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ 3 ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਤੇ 4 ਕਿਲੋ ਚਾਵਲਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। 3 किलो चीनी का मुल जमा 4 किलो चावलों का मुल। ठीक है विद्यार्थियों। तो 3 किलो चीनी का मुल साढ़े कोल है 135 रुपए। 4 किलो चावलों का मुल साढ़े कोल है 216 रुपए। ठीक है जी। तो 135 ते 216 नूं आपां जोड़ के सानू कुल खर्च जिहड़ा वो पता लग जाएगा। तो 135 जमा 216 ये साढ़े कोल कितना बनेगा 6 ते 5 जिहड़े 11 हुंदे ने, एक आ जाएगा तो एक हासिल आएगा, 1 ते 3 4, 4 ते 1 5 और 2 ते 1 3। ठीक है। तो कुल जिहड़ा खर्च है वो साढ़े कोल 351 रुपए बन जाता है। ठीक है। तो इस तरह असी कह सकते हाँ कि जगप्रीत ने कुल 351 रुपए की खरीददारी की। इसलिए या इस तरह जगप्रीत ने कुल 351 रुपए की खरीददारी की। ठीक है विद्यार्थियों। ये साडे कोल जोड़ नूं किवें असी रोजाना जीवन दीयां समस्यावां दे विच इनू आपां यूज़ कर सकते हैं, वरत सकते हैं अपनियां समस्यावां नूं हल करन लई, कैलकुलेशन करन लई, गणना करन दे लई। ठीक है। क्योंकि दुकान ते तां अक्सर असी कुछ ना कुछ खरीददारी करन जांदे ही हाँ, तो उहदा किस तरह हिसाब लगाना है वो असी इस तरह जोड़ नूं वरत के अपना कुल खर्च जिहड़ा है वो कढ सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों। ते नहीं आ जाएगा ना। ठीक है जगप्रीत ने। ठीक है जी। तो हुण असी वर्कशीट 2 का अगला सवाल है जिहड़ा वो देखांगे। इस तो बाद तुसी देख सकते हो प्रश्न 4 दे साडे कोल 5 पार्ट ने, 5 सवाल इहदे विच सानूं दित्ते गए ने। पंजों ही सवाल जिहड़े वो जोड़दे सवाल ने। ठीक है जी। इहदे विच कुछ जिहड़ा सानूं उत्तर दे अंश जिहड़े वो दित्ते गए ने और बाकी जिहड़े उत्तर दे अंश ने उत्थे खाली बॉक्स जिहड़े वो दित्ते गए ने, असीं ये खाली बक्सिਆਂ नूं भरना है। ठीक है। जिद्दां कि सब तो पहला जिहड़ा सवाल है 493 जमा 309, तो इन्हां नूं जोड़ के असीं देखना है जो संख्या बनती है उहदे विचों जिहड़ा इकाई का अंक है वो सानूं 2 दिता गया है, जिहड़ा सैंकड़े का अंक है वो सानूं 8 दिता गया है, तो दहाई का जिहड़ा अंक है वो असीं इहदे विच पता करके कैलकुलेट करके अपने कोलों लिखना है ताकि ये साडे कोल कंप्लीट जिहड़ा उत्तर है वो पूर्ण रूप विच सानूं प्राप्त हो जाए। इसे ढंग दे नाल आपां दूजे सवाल दे विच भी करना है। इहदे विच इकाई ते हज़ार वाला जिहड़ा अंक है वो नहीं दिता गया है। इसी तरह ये दहाई ते सैंकड़े वाला अंक असी पता करना है। इसी तरह चौथा ते पंजवां सवाल भी असी हल करांगे। ठीक है विद्यार्थियों। ये सारियां दियां रकमां जिहड़ियां ने स्टेटमेंट्स वो तुसीं कॉपी ते उतार लैणियां ने अते जल्दी तो जल्दी इहनूं सॉल्व करन दी कोशिश करनी है। ठीक है। तो आपां देखदे हां सब तो पहला जिहड़ा सवाल है साडे कोल 493 जमा 309। ठीक है जी। तो 3 जमा 9 जिहड़ा साडे कोल हो जांदे ने 12, 12 का 2 असीं इत्थे लिखांगे तो 1 जिहड़ा साडे कोल कैरी करांगे अगे हासिल आ जाएगा। 9 ते 1 विद्यार्थियों साडे कोल 10 हुंदे ने, भाव कि इस जिहड़ा ये अंकां दा जोड़ है वो साडे कोल 10 बनदा है। 10 दी 0 असीं इत्थे लिखांगे।
ठीक है। और एक जड़ा इत्थे लिखा जाएगा। तो 4 ते 1 5, 5 ते 3 8, ठीक है जी। तो पहले सवाल का जोड़ा आंसर है वो पूरा आंसर साढ़े कोल जोड़ा पूर्ण रूप विच 802 बनता है, ठीक है। तो एक बक्सा जोड़ा खाली सी साढ़े कोल, ये असीं इत्थे फिल कर लिया है। हुण इस तो बाद असीं दूसरे सवाल ते जावांगे। दूजे सवाल दे विच साडे कोल एक 4 अंकां वाली संख्या है, एक 3 अंकां वाली संख्या है। आपां इन्हां दा जोड़ करके देखना है और जो साडे कोल खाली बक्से ने उन्हां नूं असीं सही अंकां दे नाल भरना है ताकि साडे कोल पूर्ण रूप विच इस सवाल दा उत्तर प्राप्त हो सके, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहला 6 ते 9, 6 ते 9 साडे कोल हुंदे ने 15, 15 दे विचों 5 जिहड़ा है वो असीं इत्थे इकाई दे अंक विच फिल करांगे ते एक जड़ा है वो अगे हासिल लवांगे, ठीक है जी। तो 3 ते 1 साडे कोल 4 हो जाते हैं, 4 ते 9 जड़ा है ये 13 बनते हैं, 13 का 3 साडे कोल इत्थे आएगा तो एक असीं इत्थे हासिल लवांगे। 6 ते 1 7, 7 5 12, 12 दे विचों 2 इत्थे लिखा जाएगा, एक असीं अगे हासिल लवांगे, ठीक है। तो 2 ते 1 साडे कोल कितना बन जाता है 3, भाव के साडे कोल ये जड़ा बॉक्स 1000 वाला सी इहदे विच साडे कोल की आना सी संख्या 3। सो पूरा जड़ा कंप्लीट आंसर है वो इस सवाल का साडे कोल की बन गया है 3235, 3235 भाव 3235, ठीक है जी। तो इसी ढंग दे नाल हुण असीं तीजा, चौथा ते पंजवां सवाल है जड़ा वो भी हल करन जा रहे हैं। तीजा सवाल साडे कोल है 2017 जमा 928 जमा 74, ठीक है। तो ये आपां दहाई ते सैंकड़े वाले जिहड़े अंक ने वो पता करने ने। तो आपां इन्हां नूं खाली जिहड़ा रफ काम लई सानूं जगह दित्ती है, इत्थे आपां लिखांगे सब तो पहला 4 अंकां वाली संख्या 217, उस तो बाद 3 अंकां वाली संख्या 928, उस तो बाद 2 अंकां वाली संख्या 74, ठीक है। इन्हां दा असीं हुण जोड़ करांगे। 8 7 साडे कोल हुंदे ने 15, 15 ते 4 19, तो साडे कोल इत्थे 9 आएगा इकाई दा अंक और एक जड़ा असीं हासिल लवांगे, ठीक है। तो 1 1 2 2 2 4, 4 ते 7 साडे कोल 11 हो जांदे ने, तो एक इत्थे आएगा तो एक असीं हासिल लवांगे। 9 ते 1 साडे कोल बनदे ने 10, 10 दा 0 आ जाएगा तो एक जड़ा अगे हासिल लवांगे तो 2 ते 1 साडे कोले 3 बन जांदे ने, ठीक है जी। तो इस तरह असीं देखिया कि साडे कोल तीजे सवाल का जिहड़ा उत्तर है वो 3019 बनता है, 3019। तो इहदे विच पहला अंक सानूं जिहड़ा 3 दिता गया है, आखिरी जिहड़ा अंक इकाई का 9 भी दिता गया है, 0 ते 1 असीं इत्थे फिल कर देंगे बॉक्सेस दे विच। तो इस तरह साडे कोल पूर्ण रूप विच तीजे सवाल का उत्तर जिहड़ा है वो प्राप्त हो जाता है 3019, ठीक है जी। तो इस तो बाद चौथा सवाल है साडे कोल 5077 जमा 537 जमा 98, ये बराबर साडे कोल किन्ने दे आएगा, ये असीं पूरा उत्तर इहदा हुण पता करांगे। सो इहदे विच सब तो पहली संख्या साडे कोल है 5077, दूजी संख्या है 537 और तीजी संख्या है 98। सो इहदे सब तो पहला असीं जोड़ करदे हां। 7 ते 7 14 होंदे ने, 14 ते 8 जिहड़ा साडे कोल 22 बन जाणगे, ठीक है। तो इत्थे 2 आएगा, 22 का 2 इत्थे आएगा और एक साडे कोल 2 जिहड़ा इत्थे हासिल चले जाएगा, ठीक है। 7 ते 2 9, 9 ते 3 12, 12 ते 9 21, तो 21 का 1 इत्थे आएगा, 2 इधर हासिल लवांगे, ठीक है जी। तो 5 ते 2 साडे कोल 7 हो जाते हैं, ये 7 बन जाएंगे, इस तो बाद ये 5 आएगा तो 5, वेरी गुड, ठीक है। तो साडे कोल चौथे सवाल का जिहड़ा आंसर है उत्तर है वो की बन जाता है 5712, 5712, ठीक है। ये विचों 71 जिहड़ा है वो सानूं पहले ही दिता गया है, इकाई दे अंक की जगह ते असीं 2 लिख देंगे और 1000 के अंक की जगह ते असीं 5 लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह चौथे सवाल का भी जिहड़ा उत्तर है वो सानूं पूर्ण रूप विच प्राप्त हो जाता है। उत्तर की है 5712, 5712, ठीक है विद्यार्थियों। इस तो बाद पंजवां सवाल साडे कोल, मैनूं उम्मीद है कि तुसीं हुण तक शायद ये हल कर लिया होवेगा। तो देखते हैं आपां पंजवें सवाल दे विच साडे कोल 3 रकमां दित्तियां होईयां ने, 3344, 403 अते 37, इन्हां दा जोड़ जिहड़ा वो साडे कोल की बनदा है, ठीक। 3344, उस तो बाद 403, उस तो बाद 37, हाँ जी। तो ये सब तो पहला इकाई के अंकों असीं जोड़ते हैं, 4 ते 3 7 होंदे ने, 7 7 14, तो 4 इत्थे आएगा, एक हासिल चले जाएगा, ठीक। 4 ते 1 5, 5 ते 3 8,
इस तो बाद 4 3 साढ़े कोल 7 होंगे ने, ठीक है। तो 3 जोड़ा साढ़े कोल एस एच थले आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थियों। तो पंजवें सवाल का साढ़े कोल जोड़ा उत्तर है वो बनता है 3784 भाव 3784, ठीक है। ये 4 ते 8 सानू पहले ही 84 इतने दिते गए हैं। पहले दो बॉक्स जोड़े उन्होंने आप जो उत्तर असी प्राप्त किया है वो असी फिल कर देंगे, ठीक है जी। तो पंजवें सवाल का आंसर साढ़े को 3784 बन जाता है, ठीक। तो असी ये चौथे सवाल के जोड़े पंजों पार्ट सगे वो असी आप हल कर ले ने, उन्होंने जोड़े उत्तर ने वो पूर्ण रूप के जोड़े वो प्राप्त कर ले गए हैं, ठीक है विद्यार्थियों। मैनू उम्मीद है कि सारे सवाल तुसी नोटबुक ते नोट भी कर ले होंगे और इन्हों समझ भी लिया होगा, ठीक है जी। और कुछ विद्यार्थियों ने तो मेरे तो पहला भी हल कर ले होंगे। इस तो बाद हुण साडे कोल इस वर्कशीट का जिहड़ा आखिरी क्वेश्चन है, आखिरी सवाल है वो असीं देखांगे, ठीक है जी। सो पंजवें प्रश्न की जिहड़ी रकम है वो साडे कोल स्क्रीन ते तुसीं देख सकते हो। हेठां दित्ती सारणी विच कमल, कुलदीप अते रमन द्वारा किसी ਪ੍ਰੀਖਿਆ विच लए गए अंक दिते गए हैं। दसो तिन्हां विचों किस ने सब तो ज़्यादा अंक प्राप्त किए। इस दा हल कढ़न लई तुसीं की कीता अते क्यों कीता समझाउंदे होए लिखो, ठीक है विद्यार्थियों। तो पंजवें सवाल की रकम असी पढ़ी है, थले साडे कोल एक सारणी जिहड़ी है वो दिती गई है। तो सब तो पहला आपां बच्चों सारणी नूं समझांगे कि किवें असी इहदे तों ये जिहड़ी सारणी है वो सानूं किस चीज़ नूं दर्शाउंदी है। सारणी की जिहड़ी साडे कोल पहली लाइन है ये देखो इत्थे साडे कोल विशा लिखा गया है और अगे साडे कोल विषयां दे नाम लिखे गए हैं, जिवें अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान अते पंजाबी, ठीक है। उस बाद विषय के थले 3 विद्यार्थियों के जिहड़े नाम है वो लिखे गए हैं, कमल, कुलदीप अते रमन, ठीक है। हुण असीं देखांगे कि ये जिहड़े अंक लिखे गए हैं उन्हां दा असल दे विच की भाव है। कमल के नाम के सामने जिहड़े अंक लिखे गए हैं ये सारे 5 विषयों के विचों कमल द्वारा प्राप्त किए गए अंक हैं। जिद्दां कि कमल द्वारा अंग्रेजी विच प्राप्त किए, कमल द्वारा अंग्रेजी विच प्राप्त किए अंक जिहड़े 63 ने, कमल द्वारा हिंदी विच प्राप्त किए अंक 60 ने, कमल द्वारा गणित विच प्राप्त किए अंक 68 ने, कमल द्वारा विज्ञान विच प्राप्त किए अंक 64 ने, कमल द्वारा पंजाबी विच प्राप्त किए अंक 59 ने, ठीक है। इसी तरह कुलदीप, रमन इन्हां दे भी असीं अंक देख सकते हैं। कुलदीप दे अंग्रेजी विच 58, हिंदी विच 71, गणित विच 90, विज्ञान विच 85, पंजाबी विच 90, ठीक है। और रमन दे अंग्रेजी विच 67, हिंदी विच 75, गणित विच 56, विज्ञान विच 99 अते पंजाबी विच 80, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहला तो असीं ये देखा कि असीं सारणी नूं किवें पढ़ना है, सारणी तो किवें असीं समझना है, जो जानकारी सानूं सारणी दे विच दित्ती गई है, ठीक है जी। सो विद्यार्थियों इस सवाल विच आपां ये दसना है कि तिन्नां विचों किस ने सब तो ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो ये चीज़ देखण लई सानूं पहलां तां इन्हां दे जिहड़े कुल अंक ने वो पता करने पैणगे। जिद्दां कि कमल ने जिहड़ा अंग्रेजी दे विच 63 अंक प्राप्त किए ने, है ना, कुलदीप ने 58 तो रमन ने 67, तो रमन के अंक इन्हां विचों ज़्यादा ने। पर अगर असीं गणित दे विच देखीए तो कुलदीप के 90 अंक ने, कमल के 68 तो रमन के 56, ठीक है ना। तो ये कुलदीप के ज़्यादा बनते हैं। तो सानू की करना पेगा, सानू सारे विषयों विचों प्राप्त किए अंक जिहड़े कमल द्वारा ने उन्होंने जोड़ना पेगा। जोड़ के सानू पता लगेगा कि कमल ने कुल किन्ने अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। इसी तरह कुलदीप के सारे विषयों के अंक असीं जोड़ांगे, फिर वो साडे कोल कुलदीप के कुल अंक आउणगे। फिर रमन के सारे विषयों के अंक असीं जोड़ांगे, फिर साडे कोल रमन ने कुल किन्ने अंक प्राप्त किए हैं वो साडे कोल आएगा। फिर वो तिन्नां दी तुलना करते हुए, तिन्नां दे कुल अंकां दी तुलना करते हुए असीं दस सकांगे कि कमल, कुलदीप ते रमन दे विचों किस ने सब तो ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इस दा हल कढ़न लई असीं की कीता, असीं की करांगे, असीं सारियां संख्यावां दा, सारे अंकां दा, वख-वख विषयां दा जोड़ करके असीं हर एक विद्यार्थी दे कुल अंक प्राप्त जिहड़े कीते ने उसने वो असीं पता करांगे, ठीक है विद्यार्थियों। तो सब तो पहलां आपां लिखदे हां कमल द्वारा प्राप्त किए कुल अंक। हाँ जी विद्यार्थियों, ये साडे कोल 63 जमा 60 जमा 68
जमा 64 और प्लस 59। ठीक है जी। 63 अंग्रेजी दे, हिंदी दे 60, गणित दे 68, विज्ञान दे 64 ਤੇ 59। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਆਏਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ। 3 ਤੇ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 11 ਹੋਣਗੇ, 11 ਤੇ 4 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 15 ਤੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। तो इतने 4 हासिल आएगा, 4 नीचे आएगा तो 2 हासिल आ जाएंगे। 6 ਤੇ 2 8 है, 8 ਤੇ 6 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 14, 14 ਤੇ 6 20, 20 ਤੇ 6 26, 26 ਤੇ 5 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 31 ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ 314 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ 314। ਇਹ ਜੋੜ ਅਸੀਂ ਰਫ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਲਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 58, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 71, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 85 और उस तो बाद फिर 90। ठीक है। तो इन्हां सारिਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 8 ਤੇ 1 9, 9 ਤੇ 4 15, 15 ਦਾ 4 ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। 1 ਹਾਸਲ, 5 ਤੇ 1 6, 7 6 13, 13 ਤੇ 9 22, 22 ਤੇ 8 30, 30 ਤੇ 9 ਜਿਹੜਾ 39 ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 394। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ 394 ਉਹ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਮਨ ਦੀ। तो ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ, ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ। ਹਾਂਜੀ, ਰਮਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਅੰਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 67 ਹੈ, ਜਮਾ 75, ਜਮਾ 56, ਜਮਾ 99 और ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਨੇ 80। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। 7 5 12, 12 ਤੇ 6 18, 18 ਤੇ 9 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 27 ਬਣੇਗਾ। तो ਇੱਥੇ 7 ਆਏਗਾ, 2 ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਸਲ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 6 ਤੇ 2 8 ਨੇ, 8 7 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15, 15 ਤੇ 5 20, 20 ਤੇ 8 28, 28 ਤੇ 8 ਸਾਡੇ ਕੋਲ 36 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 367 ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ 367। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਲ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ 314 ਨੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 394 ਨੇ ਅਤੇ ਰਮਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਅੰਕ 367 ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਕਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜੋ ਕਿ 394 ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। और कमल द्वारा रमन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ और कमल ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ 394 ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਕ ਜਿਹੜੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 394 ਹਨ। ठीक है विद्यार्थियों। तो कुलदीप ने सब तो वध अंक साडे कोल प्राप्त किए ने जिहड़े कि 394 है। ठीक है। तो इहदा हल कढण लई असीं कीता की है, इहदे च जोड़ कीता है। ठीक है। तो विद्यार्थियों ठीक है। इस तो बाद आपां
ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਵਰਕਸ਼ੀਟ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।